So here now we are continuing the chapter elasticity of demand with the topic factors affecting elasticity of demand, which means that which factors affect the elasticity, the responsiveness of the demand. Okay, because responsiveness, we can the demand can respond or cannot respond, depends upon the use of the commodity. Okay, if the commodity is a necessity, then it may be that the demand can't respond. Even if the prices increases or decreases, we have to purchase the commodity. And if we can change the demand, it is not of our utmost need. For example, the fruits we are consuming, the clothes the new clothes we are purchasing, or we are going for a vacation. Okay, so all that is not a necessity. So for those commodities, we can change the demand. So here now we are starting the topic factors affecting elasticity of demand. Now, number one is nature of the commodity. Okay. Nature means we are dividing this nature of the commodity into two parts. First one is if the commodity is a necessity. Okay. If a commodity is a necessity, बच्चों अगर commodity हमारी necessity होती है, then the demand is inelastic. क्यों? क्योंकि हम उसको डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं प्राइसेस के चेंज होने पर, क्योंकि वो हमारी जरूरत की चीजें हैं, नेसेसिटी है. और नेसेसिटी की चीजें ऐसी होती हैं कि भले ही अब जैसे किसी को दवाई चाहिए, को मेडिसिन चाहिए, घर का हमें सामान चाहिए, घर का राशन चाहिए, घर में खाने की चीजें चाहिए, वी कैन नॉट अवॉइड दिस. स्कूल की फीस है, वी कैन नॉट अवॉइड दिस एक्सपेंसेस. तो जो चीजें हमारी नेसेसिटी की होती हैं, their demand is less elastic. All of you write with pencil with these topics, write that the necessity is less elastic, because afterwards you will forget it. And the main thing that you have to write in the answers is whether the demand is less elastic or more elastic. Only to write this is necessity, it is not sufficient, because here we are explaining what are the factors that affect the elasticity of demand. So the commodity which are a necessity are having the less elastic demand. Right after this with the pencil in the book that it is less elastic because it is a necessity. Okay. Now the next one category is if it is a luxury, if it is a comfort zone thing, then the demand is elastic. With the change in the price, we can change the demand of the commodity. So the nature of the commodity, we had divided the category into two parts, necessity and luxury. If a commodity is a necessity, the demand is less elastic, and if the commodity is a luxury, the demand is more elastic. Means with the change in the price, we can change the demand. So right over here with pencil, less elastic in the first one, more elastic in the luxury, because you have to write this in the form of the sentences. If you are not writing this, you will not get the marks. Now, the second one factor that is the factor affecting elasticity is availability of substitutes. Okay, if any commodity is having the substitutes, if the substitutes are available for any commodity, the demand will be elastic. क्यों? क्योंकि बेटा जब अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो हम दूसरी कमोडिटी पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. लेकिन अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है ना, जैसे पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है ना, तो हम उसमें क्या होगा, उस केस में डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक ना. परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे लेस इलास्टिक. तो यहाँ पर भी आप दो कैटेगरी बनाइए, यहाँ पर पेंसिल से लिखिए सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, demand is elastic. Substitutes are not available, demand is inelastic or less elastic. Write all of you with pencil in your books. Okay, so if the commodity, the substitutes are available, you know what are substitutes? Substitutes are the goods which can be used in place of one another. Next is income level. Okay, so income level. Again. Just wait. So the next one factor affecting elasticity of demand is income level.
Here also we have divided the category into two parts, more income or the less income. Generally, the people, those who are having more income, their demand is inelastic because in spite of the change in the prices, they do not change the demand. क्योंकि वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम ज्यादा है, वो चाहे तो कितनी कमोडिटी परचेज करें। तो जिन लोगों की इनकम लेवल ज्यादा होता है, उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड होती है लेस इलास्टिक। राइट ओवर हियर, मोर इनकम लेस इलास्टिक। और अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम लेस होती है ना, उसको उसी इनकम में अपना जो है सब खर्चे करने हैं, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाती है? मोर इलास्टिक। यानी कि जहां प्राइसेस बढ़ेंगे तुरंत वो अपनी डिमांड को चेंज कर लेगा, भले ही उसकी जरूरत की चीजें, हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ना, या फिर जो चीजें लग्जरी की है उनको काफी कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम है, उसको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वरना वो प्रॉब्लम आ जाएगा, उसे कोई पैसे तो देगा नहीं ना। तो जिनकी इनकम ज्यादा होती है, विद पीपल विद द मोर इनकम, दे आर हैविंग less elastic demand, and people with the less income are having elastic demand. Now the fourth one is level of price. Now लेवल ऑफ प्राइस यानी कि कोई गुड कॉस्टली है या कोई गुड हमारे लिए इनएक्सपेंसिव है ना। जो गुड बेटा कॉस्टली होते हैं, जैसे कि आपको कार खरीदनी है, आपको लैपटॉप खरीदना है, आपको एसी खरीदना है, आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आपको कुछ महंगे अप्लायंसेस खरीदने हैं घर के, वॉशिंग मशीन खरीदना है ना, तो इनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। जहां अगर प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि भैया अगर शायद कम हो जाए तो हम उसको खरीद लें, या फिर जनरली क्या होता है ऑफ सीजन में इनकी सेल आती है, और त्योहारों के सीजन में इनकी सेल आती है। आजकल के समय दिवाली, इसके ऊपर जो है बहुत सेल आई है, हर चीज पे सेल आई है, ताकि लोग उस चीज को परचेज करें ना। तो जिन कमोडिटी की जो कॉस्टली कमोडिटीज होती है ना, उनकी डिमांड होती है इलास्टिक, क्योंकि जहां उनके प्राइसेस बढ़ते हैं हम डिमांड कम कर देते हैं, और जब प्राइसेस उसके रिड्यूस होते हैं सभी लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो जिन कमोडिटी की जो कॉस्टली कमोडिटी होती है उनकी डिमांड होती है इलास्टिक, और जो कमोडिटी इनएक्सपेंसिव होती है, जैसे कि निडल है, मैच बॉक्स है, शू पॉलिश है, या फिर घर की छोटी मोटी आइटम जो कि ज्यादा यूज नहीं होती है, उनकी डिमांड क्या होती है? लेस इलास्टिक। उनके प्राइसेस बढ़ भी जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत कम इनकम हमारी खर्च होती है। तो जिन कमोडिटी, जो कि कमोडिटी हमारी इनएक्सपेंसिव होती है या सस्ती कमोडिटी होती है, उनके ऊपर वो डिमांड कैसी होती है? लेस इलास्टिक। Now the fifth one point is postponement of the consumption. Now बेटा वो कमोडिटी जिनका की यूज हम पोस्टपोन कर सकते हैं ना, अभी नहीं तो चलो बाद में खरीद लेंगे, हमारा गुजारा चल रहा है, उन कमोडिटी की डिमांड होती है इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स हम चेंज कर सकते हैं ना, कि हम पोस्टपोन कर सकते हैं उसके यूज को। जैसे अभी आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आप सोचते हैं अपने बड़ा रेफ्रिजरेटर लेना है ना, लेकिन अभी चल रहा है रेफ्रिजरेटर, देन यू कैन पोस्टपोन की ठीक है जब ऑफर आएगा तब हम देख लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है, उससे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और आपका सामान घर में खराब होता जा रहा है, और भैया खरीदना तो है ही, तो आप पोस्टपोन नहीं कर पा रहे ना उसका यूज ना, तो वो क्या होता है उस केस में डिमांड हो जाती है लेस इलास्टिक। So the commodities for the use for which we can postpone, they are having elastic demand, and the commodities for which we cannot postpone the use, then that is known as the inelastic demand. जिनका की यूज हम पोस्टपोन कर नहीं सकते, हमें डॉक्टर के पास जाना है इमीडिएटली, हमें कोई प्रॉब्लम है या परिवार में किसी तरह का प्रॉब्लम है, so we can not postpone the consumption. So in those cases the demand will be inelastic. Okay, now the next one, number of uses. जिन कमोडिटी के यूजेस ज्यादा होते हैं, ये सेम वैसे ही है जैसे कि लेवल ऑफ प्राइस है लगभग, जिन कमोडिटी के यूजेस ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है हमारा उसमें पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, तो उन कमोडिटी की डिमांड होती है इलास्टिक, कि अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे। लेकिन जिन कमोडिटी के यूजेस कम होते हैं, फ्यू यूजेस होते हैं, उन कमोडिटी की डिमांड होती है लेस इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास में और ऑप्शन जो हमने उसे यूज कम करना है, एक ही बार पैसा खर्च होना, वैसे भी यूज कम हो रहा है, तो उनकी डिमांड हो जाती है लेस इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूजर्स भी और जो है हमारा इफेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन,
or be here. Only 7 points are enough. Okay, no need to read more. Now the last one is share in the total expenditure. Okay. Share in the total expenditure. हाँ बच्चों, तो जब हमारा खर्चा ज्यादा होता है किसी कमोडिटी के ऊपर ना, कि हमारा प्रोपोर्शनेट इनकम हमारा ज्यादा पड़ रहा है, तो उनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक, क्योंकि हमें भैया सोचना पड़ता है कि भैया इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो चलो हम उसकी डिमांड को थोड़ा चेंज करते हैं, कहीं और कोई ऑप्शन देखते हैं। तो अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा होता है किसी कमोडिटी के ऊपर, तो डिमांड होती है इलास्टिक। लेकिन अगर हमने बहुत कम पैसा खर्च करना है, वही है लेवल ऑफ प्राइस वाला पॉइंट है, सॉल्ट, निडल्स, सोप, मैच बॉक्सेस, इन पे हमारा पैसा कम खर्च होता है, तो इन चीजों में हमारी डिमांड हो जाती है लेस इलास्टिक। अगर ये चीज हमें आस पड़ोस से महंगी भी मिल रही है तो हम परवाह नहीं करते कि चल खरीद, मतलब हम सोचते हैं भैया कोई बड़ी चीज लेनी है मुझे, आपने कार खरीदनी है तो आप हल्द्वानी, मुरादाबाद, कहाँ कहाँ पता करते हैं, दिल्ली और ये इधर बरेली, कि हमें जो है प्रॉपर रेट्स पर मिल जाए ना, तो क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। और वहीं अगर हमारा खर्चा कम होना है उस कमोडिटी के ऊपर, तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है उस केस में? लेस इलास्टिक। सो इन ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, what factors affecting elasticity of demand, what you have to write with the factors, the name of the factors, first of all you have to explain that, and then you have to write whether the demand is elastic or the demand is inelastic, and you have to underline that with a pen that this is elastic, और फिर जो inelastic है उसको भी underline करना है, आपने show करना है that I am showing that I have written this ना, क्योंकि ये elastic inelastic लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। Not only to explain all this, but you have to write that if, for example, I have taken this income level. If the income level is more, demand is inelastic. If the income level is less, demand is more elastic. Okay, तो जो आपने लिखा income level is more, demand is elastic, demand is less elastic, you have to underline that less elastic. And if the income level is less, demand is more elastic, you have to underline that more elastic. हर एक point में, because you have the main thing that you are showing over here is whether the demand is elastic or whether the demand is inelastic in this factors affecting demand. So keep in care this, that you have to write it properly, whether the demand is elastic or whether the demand is in